Common good morning. Today we are going to cover the topics: tropical deciduous forest, the thorn forest, and even the montane forest. First, we'll move with the tropical deciduous forest. जो deciduous forests है, these are the most widespread forest of India. जो हमारी country का maximum forest cover है, that is the deciduous family. They are also called the monsoon forest and spread over the regions receiving rainfall between 200 centimeter and 78 centimeter. It means कि उन एरियाज में अभी हमारा सेंट्रल एरिया है जितना भी इंडिया का, that is covered with the deciduous forest. Trees of this forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks in dry summers. So ये एक particular season में यहाँ के जो trees हैं वो अपने leaves shed कर देते हैं. So एक particular season में ये जो trees हैं these forests look dry. जैसे हमने evergreen में पढ़ा था कि all the trees do not shed their leaves at one particular season. तो वो हमें हमेशा ही evergreen लगते हैं, लेकिन ये जो forest हैं यहाँ पर एक particular season में जो trees हैं वो dry लगने लग जाते हैं. And on the basis of availability of water, these are further divided into moist and dry deciduous. The former, that is the moist one, is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. ये कहलाते हैं moist deciduous forest, and these forests exist therefore mostly in the eastern part of the country. जितने भी deciduous forests हैं जो moist हैं या wet भी कहते हैं हमको, ये पाए जाते हैं eastern side में, right? And even the northeastern states along the foothills of the Himalayas. जिसमें हम cover कर सकते हैं areas of Jharkhand, West Odisha and Chhattisgarh, and even on the eastern slopes of the western Ghats. Right? Western Ghats का जो western part है वहाँ पर है evergreen forest, और उसका जो eastern part है वहाँ पर है moist deciduous forest. Teak is the most dominant species of this forest. Bamboo, sal, shisham, sandalwood, khat, kusum, arjun and mulberry. जो arjun है इसकी medicinal value भी है. These are other commercially important species. Please underline this. Just underline all these species which are found in these forests. The other one is the dry deciduous forest. These are found in areas having rainfall between 100 centimeter and 70 centimeter. ये जो rainfall है ये आपको याद होना चाहिए, उसी की basis पे you can distinguish the moist and the dry deciduous forest. And these forests are found in the rainier parts of the peninsula plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. So अगर आप थोड़ा सा मैप विजुअलाइज करें तो you will find कि तुम्हारा सेंट्रल एरिया है, इंडिया का जो सेंट्रल एरिया है वो जो है वहां पर ज्यादा ड्राई deciduous पाए जाते हैं. There are open stretches in which teak, sal, पीपल and neem grow. अगर आप बाई ट्रेन जा रहे हो तो रास्ते में आपको जितने भी बड़े फॉरेस्ट नजर आते हैं, if you are going to सेंट्रल इंडिया या एमपी जा रहे हैं, आप थोड़ा सा मुंबई की तरफ जा रहे हैं, या if you are going to some parts of central part of Karnataka, तो रास्ते में जो आपको पेड़ नजर आते हैं या थोड़े बहुत जो फॉरेस्ट नजर आते हैं, they are dry deciduous. Especially when यहाँ से बैंगलोर अगर आप जा रहे हैं by train, right? There on the way you will find the dry deciduous areas. और यही अगर आपने जाना है सिक्किम by train, right? So वहाँ पर जब आप बिहार पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो लोअर लेवल्स हैं जो ऑलमोस्ट इट इज नियर द hills, so वहाँ पर you will find a wet deciduous forest. हालांकि वो एक कोई mountainous region नहीं है, but still the areas are quite better off in those areas, right? So यहाँ पर हमने पीपल, नीम, teak and sal. teak wood जो है वो ज़्यादातर फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है. A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. तो ये जितने फॉरेस्ट हैं ये इनकी जो इसमें ऐसी वैरायटी पाई जाती है इनको काटना भी आसान है, तो ये कल्टीवेशन के लिए भी यूज हो रहा है. तो लैंड जो है वो क्लियर की जा रही है, खेती की जा रही है वहाँ पर, एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग आल्सो. In these forests, the common animals found are lion, tiger, pig, deer and the elephant. जो आम एक जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, and a huge variety of birds,
lizards, snakes and tortoise are also found here. तो ये तो जो बहुत ही deep forest है वहाँ पर ये जो animals है वो पाए जाएंगे. आम हम लोगों को ये नजर नहीं आते हैं, right? So it is broadly divided in two parts, dry and wet. और जब आप dry और wet के बारे में लिख रहे हैं, then you have to write the rainfall which these areas receive, because that is the main thing which distinguish these two forests, right? Then is your thorn forest and the scrubs. thorn forest जो है उसको बहुत ही easily पहचान पाते हैं क्योंकि ये almost एक dry region है, बारिश होती नहीं है. The rainfall is less than 70 centimeter. See, अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात क्या देखनी है, 70 सेंटीमीटर तक, till 70 centimeter of rainfall we find the deciduous forest, right? And the rainfall less than 70 centimeter, that experience the thorn forest, right? और ये जो thorn forest है, these are consist of thorny trees and bushes. जैसे कि नाम भी इसका है thorn forest, इसमें thorny forest, thorny trees और bushes नजर आएंगे. झाड़ियां नजर आती हैं, उसमें भी कांटे होते हैं, thorns होते हैं. जो trees होंगे उसमें भी ज्यादातर thorns होते हैं. And this type of vegetation is found in northwestern part of the country. Fine. So as I was saying, this type of vegetation it is found in the northwestern part of country, जिसमें हम पंजाब को include कर लेते हैं. The semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh and Haryana even जो बिल्कुल western part है पंजाब का, वहाँ भी we will find this type of vegetation. Acacia, palm, then its euphorbias and cacti. These are the main plant species. You have to underline this. These are the main plant species which are found in the thorny forest, right? And what other qualities are there? These trees, these are scattered. दूर तक फैले हुए हैं यहाँ पर and have long roots. Why these trees have the long roots which penetrates deep into the soil? Reason is these areas receive very less rainfall. So these roots are spread over a larger area and these are penetrating deep in the soil so that they can absorb the moisture from the distant areas. अगर कहीं दूर दूर तक भी कहीं moisture मिलता है इनको तो ये absorb कर सकते हैं. तभी इनकी जो रूट्स होती हैं ये ज्यादा फैली होती हैं. The stems are succulent to conserve water and the leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. जो leaves होंगे आप नोट करेंगे thick होंगे, मोटे होंगे और छोटे होते हैं, प्लस इनमें वैक्स कोटिंग होती है. उसका रीजन ये होता है so that कि जो evaporation है वो minimize हो सके through the process of transpiration. The loss of moisture is prevented by these kinds of leaves and these forests give way to thorn forest and scrubs in arid regions. जो बिल्कुल dry regions, जैसे arid का मतलब होता है dry regions, right? So वहाँ पर इस टाइप के पाए जाते हैं पेड़. And the common animals are rats, mice, rabbits, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horse and camel. See, otherwise तो ये बहुत scattered होते हैं और बहुत ही कम एरियाज है जहां पर आपको ये एनिमल्स जो है मिलेंगे. रैट्स, माइस और रैबिट्स जो है वो बहुत कॉमन है, राइट? और लायन है, टाइगर है, ये बहुत ही रेयर या बहुत ही कम एरियाज होंगे जहां पर ये पाए जाते हैं. देन कम्स योर montane forest. As the name suggests, montane forest is the forest which is found in the mountainous regions. इसको हम माउंटेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम मॉन्टेन भी कह सकते हैं. तो जब मॉन्टेन आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है. वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेनियस रीजन्स और द माउंटेन फॉरेस्ट. अब यहाँ जो माउंटेन फॉरेस्ट है ये सारे ही कॉमन नहीं है. लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट तो आपको सब जगह एक जैसे ही एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, राइट? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेसिडियस सो सभी जगह सेम ही डेसिडियस होगा. इफ यू आर टॉकिंग थॉर्न तो जो भी एरिड रीजन्स है ना सेम तरह के पाए जाएंगे. माउंटेन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हाइट के हिसाब से
राइट। एल्टीट्यूड के हिसाब से यहाँ पर जो वेजिटेशन है दैट डिफर्स, लाइक द वेजिटेशन विच वुड बी देयर ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, या जिसे हम शिवालिक रेंज कह लेते हैं, वहां पर वेजिटेशन अलग होगी। हम थोड़ा और हाइट पे जाएंगे, वहां वेजिटेशन अलग होगी, राइट। तो यहाँ पे हाइट के हिसाब से ये जो वेजिटेशन है इट डिफर्स। So the decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. So as such, there is succession of natural vegetation belts in the same order as we see from the tropical to the tundra region. तो जैसे जैसे हम यहाँ पर हाइट पे जाते रहते हैं वैसे वैसे यहाँ की जो वेजिटेशन है दैट कीप्स ऑन वेरिंग. So a wet temperate type of forest are found between height of 1000 and 2000 meters. अब जिनका सी लेवल से हाइट 2000 meters तक है, till 2000 meters we find the wet type of forest. It means greenery है forest में, right? अगर आप जाते हैं यहाँ से हिमाचल चले जाते हैं तो वहां जैसे आपको trees नजर आएंगे that will be a temperate one. राइट, वो एक टेम्परेट वेट टाइप ऑफ ट्रीज हैं. सो दैट इज देयर एट द हाइट ऑफ 1000 and 2000 meters. Evergreen broad-leaf trees such as oaks and chestnuts are predominating. So आप एक आम हिमाचल चले जाइए, आप यहाँ से जाइए डलहौजी, आप जाइए धर्मशाला चले जाइए, आप ये सभी एरियाज जो है यहाँ पर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है. यहाँ पर ज्यादा आपको इसी टाइप के पेड़ नजर आएंगे, दैट इज द ओक एंड द चेस्टनट्स, राइट. उसके बाद है बिटवीन 1500 and 3000 मीटर्स. हम उससे और हाइट पे चले जाते हैं 1500 से 300 मीटर्स तक, 3000 मीटर्स तक. सो वहां पर द फॉरेस्ट कंटेनिंग कोनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सिदार आर फाउंड. अब हिमाचल में भी अगर तो आप जैसे मैंने बताया कि डलहौजी वगैरह जाएंगे, ये थोड़ा लो हाइट पे है एरियाज, राइट. अब अगर आप और ज़्यादा हाइट पे जाएं हिमाचल में ही, तो वहाँ पे भी आपको जैसे देवदार है, देवदार आपको बहुत कॉमन वन ट्रीज मिल जाएंगे, वो क्योंकि थोड़ी और हाइट पे. अगर आप हिमाचल में कहीं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, जो एक आम लेमैन जैसे हम लोग हैं, अगर हम ट्रैकिंग पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें इस टाइप के पेड़ नजर आ जाएंगे, स्पेशली देवदार. देवदार जो है आप कह सकते हैं कोनिकल ट्री है, कॉनिफोरस है, और बहुत ज़्यादा वेराइटी में वो हिमाचल में पाया जाता है, राइट. एंड इवन द स्प्रूस इज ऑल्सो देयर, बट स्प्रूस के लिए आपको और हाइट पे जाना पड़ता है. सिदार जो है वो और हाइट पे मिल जाएंगे. एक आम हाइट पे आपको ज्यादातर पाइन या देवदार ही मिलेगा. जब हम लोग हिमाचल जहां तक हम जाते हैं वहां पर हमें पाइन और देवदार ही मिलता है. These forests cover mostly the southern part of the Himalayas, places having high altitude and in southern and northeast India. So ये हिमालय में भी इस हाइट तक, और अगर कोई प्लेटिव रीजन भी इस हाइट तक है तो वहां भी हमें इसी टाइप के वेजिटेशन जो है वो मिलेगी. At more higher elevations, temperate grasslands are common, राइट. इससे और हाइट पे चले जाएंगे तो वहां पेड़ कम होते जाएंगे. जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं पेड़ों की डेंसिटी भी कम होती रहती है. जितने डेंस फॉरेस्ट हमें लोअर हिल्स पे मिल जाएंगे या लोअर फुट हिल्स पे मिलेंगे हिमालयस के, उतने पेड़ हमें ज्यादा हाइट पर नहीं मिलेंगे. जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट जो है वो कम होती जाती है. So as mentioned, at more higher elevation, temperate grasslands are common. At high altitudes, generally more than 3600 meters above the sea level, temperate forest and grasslands give way to the alpine vegetation. अब इससे भी ज्यादा अगर हम जाते हैं और तो वहां पर एक मिलती है एल्पाइन वेजिटेशन. एल्पाइन वेजिटेशन जो है वो भी बहुत कम डेंस होती है. एंड सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस, these are common trees of these forests. However, they got progressively stunt as they approach the snow line. Alpine vegetation जो है वहां पर ये पेड़ नजर आ जाते हैं हम. अब इसमें भी अगर हम हाइट पे जाने लग जाते हैं तो एक लेवल आता है जिसे हम कहते हैं स्नो लाइन. कि हम उसके ऊपर जो है
वहां पर हमें स्नो कवर्ड वेजिटेशन भी मिलेगी, एंड दैट वेजिटेशन विल बी वेरी वेरी स्केर्स। पोलर रीजन्स के पास जब बाई चांस चले जाते हैं तो वहां पर मिलती है टूंड्रा वेजिटेशन। टूंड्रा नॉर्मली वैसे पाई जाती है, साइबेरियन रीजन जो है वहां पर ये पाई जाती है। सो ये और हाइट्स पे मैं जैसे कह रही हूँ कि स्नो लाइन आ जाती है, स्नो लाइन तक तो हमें नजर आते हैं पेड़, उसके बाद वो टोटली स्नो कवर्ड होते हैं। और एक लेवल पे जाते हैं अगर हाइट पे तो आपको पेड़ नजर ही नहीं आते। I remember few years back, 2 or 3 years back, we just got the chance to go to Sikkim, right? और वहाँ पे एक एरिया है जिसे 0 पॉइंट कहते हैं, right? And that particular point is 15,000 meters above sea level. So when we reached that point, so no tree was there. I mean totally barren areas हैं वो, और कहीं आपको नजर आ जाते हैं तो थोड़े से bushes नजर आ जाएंगे, और इससे ज्यादा वेजिटेशन जो इन एरियाज में नहीं है, very very scarce vegetation. So ultimately through shrubs and scrubs they merge into the alpine grasslands, and they are used extensively for grazing by nomadic tribes like the Gujars and the Bakrwals. So यहाँ पे जब जहाँ तक स्नो लाइन है, स्नो लाइन आने तक तो ये जो पेड़ है यहाँ पे थोड़े घास भी मिल जाती है, जहाँ पे जो ट्राइब्स हैं जैसे गुजर बकरवाल्स हैं ये अपने जानवरों को चराते हैं, वहां तक इनको भी वेजिटेशन मिल जाती है। अगर इससे ज्यादा हाइट है तो इनको अपने एनिमल्स के लिए भी दे डोंट गेट द फॉडर। सो यही रीजन है कि जो गुजर बकरवाल्स होते हैं जब ये समर्स आती हैं तो ये अपने एरियाज में चले जाते हैं। जब अभी विंटर्स आती हैं ना, अभी लाइक नवंबर है, तो जहां पर ये अल्पाइन वेजिटेशन है वहां पे भी इस टाइम पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। अगर आप आज देख रहे हैं तो यू आर सीइंग कि ठंड भी है और रेन भी हो रही है, इट मीन्स कि कहीं हिमालय में कहीं पे स्नोफॉल हुआ है अच्छे से, जिसका अफेक्ट जो हमारे यहाँ पर आ रहा है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। कंपैरेटिवली यहाँ पर अब लो प्रेशर है और पहाड़ों पे से हाई प्रेशर होगा तो वहां से मूवमेंट जो है हवाओं की हो रही है, आप आज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। सो एज आई सेड कि अब जब विंटर्स आएंगी तो ये जो ट्राइब्स हैं ये लोअर एरियाज में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आपके घरों के पास भी यू विल सी कि कुछ कश्मीरी आपको नजर आएंगे, सूट बेचते हैं या ऐसे शॉल्स, आपके मदर्स को पता होगा। तो ये एक्चुअल में दीज आर द ट्राइब्स, ये वहां पर खेती भी करते हैं, ये कैटल्स भी रखते हैं, लेकिन अब सर्दियां आ गई हैं तो दे हैव टू मूव टू द लोअर हिल्स, क्योंकि वहां पर इस समय बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही होती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। अब ये यहाँ पर रहेंगे ऑलमोस्ट फरवरी तक, इधर जनवरी एंड और फरवरी तक रहेंगे, और आप देखेंगे मार्च से आपको ये नजर नहीं आएंगे, they will again move to their places, right, fine। और इससे भी ऊपर जो हाइट है, their mosses and lichens form part of tundra vegetation। जो बिल्कुल ही बर्फ से ढके हुए पेड़ हैं या एरियाज हैं वहां पर आपको कोई भी वेजिटेशन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट दीज mosses and the lichens। ये छोटे छोटे shrubs आप किसे कह सकते हैं, एंड दीज आर ऑल्सो वेरी स्कैटर्ड देयर। तो यही रीजन है कि वहां पे जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल है, प्लस जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे कैन नॉट आल्सो कल्टीवेट देयर, क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दे आर सो हार्श, फाइन। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस बीइंग सो हार्श इन दोज एरियाज, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल आल्सो टू लिव देयर। सो दैट्स द रीजन कि ठंड होगी तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और जब गर्मियां शुरू होगी तो अगेन दे विल गो टू देयर प्लेसेस, right? The common animals found in these forests are Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn wild ibex, deer and rare red panda, sheep and goats with thick hair। अब इन सबको अंडरलाइन कर लीजिए। जो याक है ये तो आपको बहुत कॉमनली नजर आ जाता है, अगर आप थोड़ी हाइट पे जाएंगे, इवन आप हिमाचल में काफी हाइट पे चले जाइए या आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में तो याक्स जो है वो इट इज वेरी वेरी कॉमन, एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ हायर एट द हायर एल्टीट्यूड्स द लेपर्ड इज आल्सो वेरी कॉमनली seen, right? These all are the animals which are found here। और यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी खासियत ये होगी कि दे विल बी हैविंग थिक हेयर्स, बहुत थिक हेयर्स होते हैं। अब ये जो याक है इसको आप सिंपल कह सकते हैं जो प्लेन एरियाज में बफलो होती है, राइट। हम यहाँ पर एरियाज में जो बफलो है, इफ मोर एंड मोर हेयर्स आर ग्रोन ऑन द बॉडी ऑफ बफलो इट विल लुक लाइक ए याक,
Yes, exactly. I mean, इतना ही डिफरेंस है. स्ट्रेंथ वाइज हो सकता है थोड़ा और डिफरेंस होगा, बट जो अपीयरेंस है उसमें यू विल फाइंड कि एक तरह से बफलो ही है विच इज देयर. और वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं, एज आई सेड कि वी हैड बीन देयर इन सिक्किम, तो वहाँ पे आम लोगों के बीच में ये स्टोरी फेमस है, फोक टेल आप कह सकते हैं कि दीज बफलो एंड द याग्स, दीज वर द आई मीन टू सिस्टर्स, एंड ड्यू टू सम रीजन दे गॉट सेपरेटेड, और एक नीचे प्लेन्स में आ गई थी कुछ लेने के लिए, एंड शी कुड नॉट गो बैक, शी स्टेड इन द प्लेन्स, so she looks like it, and जो पहाड़ों पे रह गए वो याग पर रह गया, और जो यहाँ पर था वो बफलो बन गई. ये एक वहाँ पे कॉमन लोग जो हैं, जैसे हम लोग वी जस्ट आस्क्ड अबाउट दीज एनिमल्स, सो दे टोल्ड अस द स्टोरी. आई मीन वी डोंट नो व्हाट इज देयर, बट एनीवे ये सारे जो एनिमल्स हैं दे आर हैविंग वेरी थिक फर, सो दैट कि वहाँ की ठंड को ये बियर कर सकते हैं, राइट. सो जितने भी एनिमल्स होंगे दे विल बी हैविंग सच टाइप ऑफ फर्स, right? So I hope these all three types of forests are very, very clear to you people. So tomorrow we will be covering the map, and even what steps are being taken by the government to protect the wildlife.